Hello students, till now in basic mathematics we have already gone through two important topics, that is around trigonometry and trigonometric indices. Today we will discuss one more very important topic, and that is graphs. In physics there is very large importance of graphs, because in kinematics and thermodynamics and other physics areas we have lot of questions related to graph in NEET as well as in JEE Main and JEE Advanced. तो ग्राफ का जो है हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए. एंड स्टार्टिंग ऑफ वी आर selecting first topic of graph, and that is the linear graph. जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है linear graph. What we actually mean by graph? ग्राफ जो है वो क्या है? ग्राफ जनरली represent relation between टू फिजिकल क्वांटिटीज और एनी क्वांटिटीज. ग्राफ जो है वो दो क्वांटिटीज को रिलेट करता है और उस रिलेशन को हम पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे ग्राफ के दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो कोऑर्डिनेट x और y है, जिसमें हम x को कोई एक फिजिकल क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, y को जो है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं. और x और y के ग्राफ से इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है वो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. फॉर अ लीनियर ग्राफ दिस रिलेशन विल बी लीनियर. इट मींस दैट द क्वांटिटी y विल चेंज लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे y और x का रिलेशन जो है वो लीनियर है. y is changing linearly with respect to x. Whenever you are studying graph, the most important part in graph is slope of graph. So how to find out the slope of graph? जब हमें इस ग्राफ का स्लोप ढूंढना है तो स्लोप ढूंढने के लिए हमें इस लाइन पे कोई भी दो रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करने होंगे. ये जो रैंडम पॉइंट्स है वो है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. पॉइंट ए हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एज x1 एंड y कोऑर्डिनेट एज y1. सो हियर पॉइंट ए कैन बी रिटन एज x1 y1. पॉइंट बी has its two coordinates. X coordinate has x2 and y coordinate has y2. So point B can be represented using two coordinates x2 and y2. Now these are the coordinates of point A and B in our graph. Now slope of this line AB, how we can find out slope of this line? So by definition, slope of line can be written as, we generally denote slope with m, and it is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Difference of y coordinates of two selected point divided by difference of x coordinate of two selected point. So slope can be written as delta y by delta x. See, slope has a lot of physical significance. Slope denotes how your quantity y is going to change with respect to change in quantity x. यहाँ पे स्लोप का काफी इंपॉर्टेंस है. स्लोप से हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है.
कि y कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है। इट कैन बी अ पॉजिटिव चेंज, इट कैन बी अ नेगेटिव चेंज, इट कैन बी अ लार्ज चेंज, इट कैन बी अ स्मॉल चेंज, एंड एवरीथिंग कैन बी understood with the help of this quantity which we call it as slope. Slope can be dimensionless, it can have a dimension, depends upon the selected quantities y and x. उससे हम बोल सकते हैं स्लोप का कोई यूनिट हो भी सकता है या यूनिट नहीं भी हो सकता। इस स्लोप को एक और तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। हमने यहाँ एक ये परपेंडिकुलर सेगमेंट बनाया है जो इस पॉइंट पे हमें यहाँ M पे मिल रहा है। इस लाइन BX2 को ये जो है ये M पे मिल रहा है। ये जो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम B to M, ये B to M जो डिस्टेंस हमारा होगा, हाउ मच विल बी दैट फ्रॉम B to M? इट विल बी y2 minus y1. So this distance can be delta y, which is y2 minus y1. This distance from A to M can be found as x2 minus x1. So AM जो distance है वो हमारा होगा delta x, which is x2 minus x1. अब ये जो लाइन है, इस लाइन का मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल सिलेक्ट करता हूं थीटा, इफ अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो इवन हियर इट इज मेकिंग एंगल थीटा, कैन बी अंडरस्टूड वेरी इजीली यूजिंग योर बेसिक रूल्स ऑफ ज्योमेट्री. सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. So in this triangle ABM, tan theta can be written as what? Tan theta is opposite side BM divided by adjacent side AM. So tan theta is opposite side BM, which is delta y divided by adjacent side AM, which is delta x. And delta y by delta x हम पहले ही बोल चुके, इट इज नथिंग एल्स बट व्हाट? इट इज m, which is nothing else but slope of line. तो स्लोप को हम कैसे लिख सकते हैं? स्लोप कैन बी रिटन एज डेल्टा y by डेल्टा x and it is equal to tan theta. एक और चीज, if this line is a straight line, अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो मैं कहीं पे भी एक्स एक्सिस से पैरेलल बनाऊंगा तो दिस एंगल थीटा इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो हम कोई भी दो अगर पॉइंट लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो भी स्लोप जो है हमारा सेम ही आएगा. सो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज सेम व्हाटएवर इज अ 2 पॉइंट सिलेक्टेड. तो ये जो 2 पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हो आप, ये और भी, उसके ऊपर स्लोप डिपेंड नहीं करता. स्लोप इज कांस्टेंट एवरीवेयर. तो कोई भी रैंडम 2 पॉइंट लेके अगर हम स्लोप ढूंढ ले, इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर लाइन. सी नाउ द स्लोप ऑफ लाइन, एज आई टोल्ड यू, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी इनफाइनाइट. अब ये कैसे डिसाइड करें कि स्लोप की वैल्यू जो है वो क्या होगी? वी हैव ऑलरेडी one relation to find out the slope of line, that is to get this angle with the positive direction of x axis. So suppose ये लाइन हमारी ऐसी है और जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, एंड दिस थीटा से इज लेस देन 90 डिग्री. अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, then we all know tan theta in first quadrant is greater than 0, therefore slope is greater than 0. So if angle subtended by line with the positive direction of x axis theta is less than 90 degree, then slope of this line is positive. Okay, one more thing, what does this positive slope indicate? जब मैं बोल रहा हूं कि इस लाइन का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है
ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है व्हेन x इज इंक्रीजिंग y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. y increases with respect to x, it is understood using a positive slope. Now second case, this was the first case. Second case, suppose that the angle subtended by line with positive direction of x-axis, this angle theta is greater than 90 degree. अगर लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. इन दैट केस, इन सेकंड क्वाड्रेंट tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेस देन 0, मतलब जो स्लोप है वो भी नेगेटिव होगा, दैट इज लेस देन 0. नेगेटिव स्लोप क्या इंडिकेट करेगा? नेगेटिव स्लोप इंडिकेट करेगा दैट द क्वांटिटी y डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू x. आप इस ग्राफ में क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो. जैसे जैसे x जो है वो इंक्रीज होगा, जैसे x इंक्रीज हो रहा है हमारा, आप देख सकते हो, वैसे जो उसका रिलेटेड y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. सो नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है? क्वांटिटी y डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू x. द थर्ड थिंग इज, लेट अस कंसीडर दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. अब अगर x एक्सिस से पैरेलल ये लाइन है, लाइन और x एक्सिस दोनों पैरेलल है, मतलब उन दोनों के बीच का जो थीटा एंगल है वो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होगा? 0. इफ दिस एंगल इज 0, देन व्हाट इज tan थीटा? ये भी 0 होगा, तो स्लोप की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी? 0. ऐसी सारी लाइंस जो x एक्सिस से पैरेलल होगी उनका स्लोप 0 होगा. 0 स्लोप का मतलब क्या है? 0 स्लोप का मतलब ये है कि इवन इफ x इज चेंजिंग y इज नॉट चेंजिंग. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये x1 x2 ये x कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो कांस्टेंट ही रह रहा है. मतलब क्वांटिटी y इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x. It indicates that slope is 0. Then the fourth kind of slope, suppose that this is the line which is parallel to y axis. अगर हमारी लाइन y axis से पैरेलल है तो x और y एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा वो, x और लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू π/2 है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा विल बी infinite. tan theta will be large, infinite. So m will also be equal to infinite. ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इवन इफ आई चेंज वेरी x by very small amount, y will change infinitely. रादर मैं x में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं फिर भी y चेंज हो रहा है. ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फोर्थ रिलेशन. सो यू कैन सी दैट अ स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इट कैन बी 0 और इट कैन बी infinite. With the help of slope we can understand the relation or the variation between two physical quantities which are selected as x and y axis. So now see, in linear graph only we will now move to equation of line. देखिए जो मैथ्स है उसमें आपको काफी सारे वेज अलग अलग मिलते हैं हाउ वी कैन रिप्रेजेंट लाइन विद द इक्वेशन, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अ सिंगल वे टू रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन बिकॉज दैट इज यूजफुल इन आवर फिजिक्स. अगर हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन की दो चीजें हमें पता है. पहली चीज जो पता है वो है उसका स्लोप
लेट अस कंसीडर ये लाइन का स्लोप जो है वो m है और ये जो है वो उसका y इंटरसेप्ट कहेंगे। y इंटरसेप्ट की वैल्यू हम ले लेते हैं c। ये जो लाइन में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये लाइन के स्लोप की वैल्यू मुझे पता है जो m है, और ये लाइन का y इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन y एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट उसे हम कहते हैं उसका y इंटरसेप्ट। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m and y intercept of line is equal to c। then without proof भी इसका काफी इजी है लेकिन हम यहाँ पे विदाउट प्रूफ ही इसको सिलेक्ट कर लेते। चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रिटन एज y is equal to mx plus c। काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होगा, मैथ में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी कहीं यूज होगा और फिजिक्स में भी आपका इक्वेशन ऑफ लाइन यूज होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे m को हम क्या कहते हैं, इट इज स्लोप ऑफ लाइन, और c जो है हमारा क्या है, वो है हमारे लाइन का y इंटरसेप्ट। अगर ये इक्वेशन में बना लेता हूं तो ये इक्वेशन का यूज क्या है, अलग अलग x की वैल्यू के लिए मुझे y की वैल्यू मिल सकती है। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो हमारा इक्वेशन है y is equal to 2x plus 3। दिस इज द इक्वेशन जो है y is equal to 2x plus 3। तो इसका स्लोप क्या होगा, अगर इसको मैं y is equal to mx plus c के साथ कंपेयर करूं तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा 2। यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट है वो हमें स्लोप मिलेगा। इस लाइन का मुझे y इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, इस लाइन का y इंटरसेप्ट जो है वो है 3। देख लेते हैं y इंटरसेप्ट हमारा 2 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 होगी तब जो y कोऑर्डिनेट होगा उसे हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये इक्वेशन में चलो x 0 रख के देख लेते हैं, y is equal to 2 into 0 plus 3। so y is equal to 3 हमें मिल रहा है at x is equal to 0, so it is quite correct that 3 is a value of what, y intercept। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 into 1 plus 3, that means 2 plus 3, so it is coming out to be 5। तो ये जो लाइन है हमारी y is equal to 2x plus 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके दो पॉइंट्स मुझे कैसे मिले, एक तो ये पॉइंट मिला 0,3 और दूसरा एक कौन सा पॉइंट मिला मुझे, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 5। सो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं हमें, दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक के कोऑर्डिनेट है 0,3 और एक दूसरा पॉइंट है 1,5। अगर इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके मैं स्लोप ढूंढता हूं, अगर इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके मैं स्लोप ढूंढता हूं तो चेक कर लेते कि 2 आ रहा है कि नहीं हमारा। तो स्लोप का हमारा एक और फॉर्मूला क्या है, इट इज y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो किस तरह के लिखा जा सकता है इसका स्लोप, y2 minus y1 5 minus 3 डिवाइड बाय x2 minus x1 1 minus 0 2 by 1। सो हमें स्लोप मिल रहा है कि नहीं 2। सो इवन दैट इज करेक्ट। भाई बहुत बार आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो ये फॉर्म में नहीं दिया होगा, y is equal to mx plus c फॉर्म में। फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैन बी, form of equation can be ax plus by, या चलो मैं वहां पे कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे कैपिटल ए लिख रहा हूँ, कैपिटल बी लिख रहा हूँ और कैपिटल सी लिख रहा हूँ, ax plus by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म में अगर मुझे लाइन दी हुई है और इसका स्लोप मुझे ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? तो एक रास्ता है कि मैं इस इक्वेशन को ये फॉर्म में लाऊं। ये फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है? तो dy को क्या लिखा जा सकता है? माइनस ax माइनस सी। तो y की वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पे? माइनस a बाय बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाय बी। इट इज क्वाइट क्लियर कि अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो इस लाइन को by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c लिखा जा सकता है। एंड देन वी कैन डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन विद b। सो द फर्स्ट टर्म इज y ओवर हियर माइनस a by b into x plus minus c by b. Now what we can do? We can compare this equation with y is equal to mx plus c, our previous equation. So if our equation is given in this form, ax plus by plus c is equal to 0, then what is slope of this line? Slope जो है वो क्या है? माइनस a by b, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। जो हमारा y इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा? यहाँ पे y इंटरसेप्ट होगा माइनस ऑफ c बाय b, दैट इज माइनस ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। उस तरह में y इंटरसेप्ट इसका ढूंढ सकता हूं। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब ये इक्वेशन का अगर मुझे स्लोप ढूंढना है, ये लाइन का मुझे स्लोप ढूंढना है। अरे एक और बात, क्या मैं कैसे पता चलेगा कि ये लाइन का इक्वेशन है? तो लाइन के इक्वेशन में जो x और y जो होते हैं दोनों की डिग्री हमेशा 1 होगी। अगर ये दोनों की डिग्री 1 से ज्यादा है तो 2 डायमेंशनल फिगर्स बन जाएंगे। इट कैन बी स्क्वायर, एलिप्स, पैराबोला, जो हम आगे आएंगे। लेकिन लाइन के लिए x और y दोनों की जो डिग्री है वो 1 होनी कंपलसरी है। चलो यहाँ पे हम ये 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मैंने दिया, इसका स्लोप ढूंढना है, क्या ढूंढ सकते हैं? अगर इसको मैं ax प्लस by प्लस c के साथ कंपेयर करता हूं तो जो a का हमारा a की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा नंबर 2। What is the value of b from this? It is 3. And what is the value of c from here? It is 5. All of them are positive. What is slope of this equation? Slope of this line. Slope is minus a by b, मतलब के minus 2 by 3। इस तरीके से मुझे इसका स्लोप मिलेगा। और अगर मैं ढूंढना चाहूं ये लाइन का y इंटरसेप्ट तो क्या होना चाहिए? वो माइनस ऑफ c बाय b, सो इट इज माइनस 5 by 3। तो आपको अब इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, कोई भी फॉर्म में दिया हुआ है, आपको उसका स्लोप इजीली ढूंढने आता है। अगर y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में तो डायरेक्टली x का जो कोएफिशिएंट है वही स्लोप ऑफ लाइन है। अगर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में दिया है तो स्लोप ऑफ लाइन जो होगा वो माइनस ऑफ a बाय b होगा। See now the general equation of line is y is equal to mx plus c। हम लोग लाइन जो है उसे देख के या तो इक्वेशन को देख के कैसे चेक कर सकते हैं कि विच काइंड ऑफ ग्राफ इट इज। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइन जो है इट इज लाइक दिस वे, व्हाट डज इट इंडिकेट? यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि y इंटरसेप्ट जो है वो c जो 0 है और इस लाइन का स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो व्हाट कैन बी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? इट कैन बी y इज इक्वल टू 2x। ये एक लाइन का इक्वेशन हो सकता है y इक्वल टू 2x, 3x, 4x, 5 एनीथिंग, but it should be having a positive slope and its y-intercept should be a 0. The second
which I am talking about, it will be in fourth quadrant because y-intercept I am considering it as 0 and slope is negative. अगर y-intercept 0 है, see in that over here in this line, slope we can easily consider it as +2. अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसमें लाइन जो हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका स्लोप नेगेटिव है, ये है नेगेटिव स्लोप. चलो इस स्लोप को हम वहां पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई और नंबर रैंडम सिलेक्ट कर लेते हैं जो है चलो -3. इफ दिस स्लोप इज -3, y इंटरसेप्ट इज 0, सो इक्वेशन कैन बी y इज इक्वल टू -3x. Few more example. Now over here I am taking y-intercept also positive and slope also positive. हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें y-intercept भी पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. ये y-intercept की वैल्यू मान लो 2 है और ये स्लोप को हम मान लेते हैं कि +3 है बिकॉज इट शुड बी अ पॉजिटिव स्लोप. तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c. y इज इक्वल टू m की जगह स्लोप 3x प्लस इंटरसेप्ट दैट इज 2. सो इफ इक्वेशन आपका इस फॉर्म का है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि लाइन का इक्वेशन जो है, जो लाइन है, ग्राफ है, वो आपकी इस टाइप की होगी. फोर्थ एग्जांपल हम ले रहे हैं, वो है इंटरसेप्ट पॉजिटिव है लेकिन स्लोप नेगेटिव है. लाइन जो है हमारी कुछ इस तरह बनेगी. ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट ले लेता हूं चलो मैं रैंडमली 5 और स्लोप की वैल्यू रख लेते हैं हम -1. तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? y इज इक्वल टू -x प्लस 5. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. ओवर हियर इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, ब्लड स्लोप इज नेगेटिव. वन मोर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस लाइन इज लाइक दिस वे. ऐसी भी लाइन हो सकती है जिसमें y इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है. y इंटरसेप्ट की वैल्यू ले लेते हैं हम अब -1 और स्लोप है मान लो +2. तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू mx दैट इज 2x प्लस c, और c की जगह पे -1, और we can have equation like this way wherein y intercept is negative and slope is also negative. ये इक्वेशन जो इस तरह हो सकती है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू है -2, अगर स्लोप है हमारा मान लो कि -3, तो इक्वेशन क्या आएगा? y is equal to -3x -2. You can see. So there are in total 6 ways of this line equation depending on its y-intercept and slope. इसके अलावा 2 और लाइन आ सकती है. कौन सी? एक लाइन जो x एक्सिस से पैरेलल हो, x एक्सिस से पैरेलल होगी, उस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू कांस्टेंट. उसे भी हम लिख लेते हैं चलो यहाँ पे. अगर हमारी लाइन जो है वो x एक्सिस से पैरेलल है और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है मान लो 5, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू 5. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्लोप जो है यहाँ पे वो 0 है, तो y इज इक्वल टू mx, यहाँ पे स्लोप 0 प्लस c जो है y कोऑर्डिनेट विच इज 5. And last kind of equation of line, the line can be parallel to y-axis. अगर ये y-axis से पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या होगा?
x is equal to 3, यहाँ पे स्लोप ऑफ कोर्स क्या होगा, इनफाइनाइट. So these are various type of equation of line that we have.